میں آپ کو بتائیں کہ برائلر اور فارمی انڈوں کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی کم ہے، قیمتوں میں اضافہ ہے۔ مرغی کا گوشت 26 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، جبکہ فی کلو قیمت 489 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام بھی 16 روپے فی کلو بڑھ گئے ہیں۔ زندہ برائلر ہول سیل 307، پرچون ریٹ 318 روپے مقرر ہے۔ فارمی انڈے بھی 1 روپیہ مہنگے، فی درجن قیمت 326 روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9660 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، اپڈیٹ کیجئے گا۔ آج سرکاری ریلی جاری کیا گیا، اس میں برائلر کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا اور انڈوں کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ برائلر کی قیمتیں جو ہے آج دوسرے روز بڑھائی گئی ہیں، کیونکہ گزشتہ روز بھی برائلر کی سپلائی متاثر کر کے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ آج مزید جو ہے اضافہ کر دیا گیا، 26 روپے فی کلو تک کا یہ اضافہ۔ اس کے بعد مرغی کا گوشت جو ہے 489 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ چکا ہے اور زندہ برائلر کی قیمت میں 16 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 307 روپے، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 318 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 2 دنوں میں برائلر کی قیمتیں 59 روپے فی کلو تک بڑھ چکی ہیں۔ 420 روپے فی کلو میں ملنے والا برائلر جو ہے 489 روپے کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں گزشتہ 2 روز سے استحکام دیکھنے کو مل رہا تھا، تاہم آج جو ہے ایک بار پھر جو ہے اضافہ کر دیا گیا اور 1 روپے فی درجن تک کا یہ اضافہ کیا گیا۔ 325 روپے سے قیمت بڑھا کر 326 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9660 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ شہر کی پرچون مارکیٹوں میں جو انڈوں کی قیمت شہریوں سے وصول کی جا رہی ہے وہ 340 روپے فی درجن تک ہے۔ جی عبدالقادر، برائلر اور فارمی انڈوں میں سپلائی کیوں کم ہو رہی ہے؟ جی بالکل، جو انڈوں کی سپلائی ہے وہ تو کھپت بڑھنے کی وجہ سے جو ہے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے انڈوں کی جو مانگ ہے وہ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے سپلائی جو ہے اس طرح نہیں بڑھ رہی۔ تاہم جو برائلر کی قیمتوں میں سپلائی متاثر ہوئی ہے، یہ برائلر ٹریڈر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مصنوعی طور پر یہ جو سپلائی ہے اسے متاثر کیا گیا تاکہ قیمتیں جو ہیں ایک بار پھر بلند سطح پر پہنچ سکے، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے برائلر کی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو مل رہی تھی، تاہم جو ہے اب سپلائی کو متاثر کر کے قیمتوں کو ایک بار پھر جو ہے بلند سطح کی طرف گامزن کر دیا گیا اور 2 دنوں میں برائلر 59 روپے یعنی کہ 60 روپے فی کلو تک مہنگا کیا جا چکا ہے۔ عبدالقادر، قیمتیں بڑھنے سے تو شہریوں کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتیں تو موسم میں تبدیلی کی وجہ سے جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام صارف یا عام خریدار جو ہے اس کے لیے انڈے خریدنا جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں 29 سے 30 روپے تک کی انڈا جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹریڈرز کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ باغوں کے شہر کو اسموگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاہور ایک مرتبہ پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 448 تک جا پہنچی۔ گلبرگ 473، اپر مال 448، رائیونڈ 413 اور جوہر ٹاؤن میں 306 AQI ریکارڈ۔ اسموگ کے باعث الرجی، آنکھوں میں جلن اور گلے میں خراش کی شکایات عام ہیں۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ باغوں کے شہر کو اسموگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لاہور ایک مرتبہ پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار اور شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 448 تک جا پہنچی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گلبرگ 473، اپر مال 448، رائیونڈ 413 اور جوہر ٹاؤن میں 306 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور فضائی آلودگی میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجود ہے، جس کا اس ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ خطرناک حد تک اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت شہر لاہور کو اسموگ نے جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس وقت شہر لاہور کا جو اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 448 تک ریکارڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ اگر شہر لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو ڈیفنس اور اسے ملحقہ علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 447، گلبرگ میں 473، اپر مال میں 448، کنٹونمنٹ میں 475، جوہر ٹاؤن 306، جبکہ رائیونڈ اور اسے ملحقہ علاقوں میں جو ہے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 413 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں اسموگ کی وجہ سے آنکھوں میں جلن اور گلے میں خراش کی جو شکایتیں ہیں وہ بھی شہریوں کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں، جبکہ اگر بات کی جائے تو
वर्ल्ड रैंकिंग में जो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त है उसके दूसरे नंबर पर भारत का जो शहर दिल्ली है वो मौजूद है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि तीसरे नंबर पर बांग्लादेश का शहर ढाका मौजूद है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 तक रिकॉर्ड जो है वो किया जा चुका है। अगर शहर लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री जबकि कम से कम जो है वो 19 डिग्री रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। जबकि शहर में जो नमी जो हवा में नमी का तनासुब है वो 86% तक जो रिकॉर्ड है वो किया जा चुका है। आज जो है वो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स बागों के शहर लाहौर का जो सुबह सवेरे 448 रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 478 और इसी 413 और 447 तक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस वक्त जो है वो स्मोक ने जो है वो शहर लाहौर को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में जो है लिए हुए है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल इन एक्शन है। गुज़िश्ता 3 माह में 1124 भट्टों को सील कर दिया गया। आलूदगी फैलाने वाले भट्टा मालिकान को 9 करोड़ 18 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। देखे जाहिद आबिद की रिपोर्ट। स्मोक पर काबू पाने के लिए इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयाँ तेज। गुज़िश्ता 3 माह में लाहौर में 233 जबकि दीगर इजला में 12,056 भट्टों की चेकिंग। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान को 2,213 नोटिस जारी। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 1,124 भट्टों को सील कर दिया। शेखुपुरा में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी न लगाने पर भट्टा मस्मार कर दिया गया। फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ इक़दाम में लापरवाही पर कार्रवाई। मुल्तान में भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न कराने पर डीओ मुल्तान मुअत्तल। जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर भट्टा मालिकान पर 9 करोड़ 18 लाख रुपए जुर्माना किया गया। DG माहौलियात पंजाब ज़हीर अब्बास मलिक का कहना है कि आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे में ईंटों के भट्टों के खिलाफ मजीद सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वासा लाहौर ने स्मोक पर काबू पाने के लिए मिस्ट क्वीन मशीनें तैयार कर ली। मिस्ट क्वीन मशीनों की मदद से शहर की मरकजी शाहराहों को साफ किया जाएगा। MD वासा गुफरान अहमद ने मिस्ट क्वीन मशीनों का मुआयना किया। वासा लाहौर ने स्मोक पर काबू पाने के लिए मिस्ट क्वीन मशीनें तैयार कर ली। मिस्ट क्वीन मशीनों की मदद से शहर की मरकजी शाहराहों को साफ किया जाएगा। आपको बताएं कि MD वासा ने तमाम टाउन्स अफसरान को सड़कों पर छिड़काव कराने के अहकामात दिए हैं। जबकि गुफरान अहमद का कहना था कि मिस्ट क्वीन मशीनें मॉल रोड, मेन बुलेवर्ड, केनाल रोड पर समेत दीगर मरकजी शाहराहों पर रोजाना काम करेंगी। सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। सरकारी निर्खों में 5 सब्जियों और 3 फलों की कीमतें बढ़ गई हैं। अदरक 900, लहसुन 620, टमाटर 140 और प्याज 130 रुपए किलो फरोख्त। मटर 500, शिमला मिर्च 200, मेथी 180 और आलू 120 रुपए किलो बिकने लगे हैं। अंगूर 500, सेब 320, जापानी फल 250 और अमरूद 200 रुपए किलो तक दस्तयाब हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। सरकारी निर्खों में 5 सब्जियों और 3 फलों की कीमतें बढ़ गई हैं। आपको बताएं कि अदरक 900, लहसुन 620, टमाटर 140 और प्याज 130 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। मटर 500, शिमला मिर्च 200, मेथी 180 और आलू 120 रुपए किलो बिकने लगे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज जो सब्जियों के रेल जारी की गई है सब मंडी इंतजामिया की जानिब से, उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 10 रुपए महंगा करके 105 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 105 के बरस दर्जा अव्वल का प्याज जो है 130 से 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे देसी 5 रुपए महंगे करके 140 रुपए में कर किए गए, फरोख्त 180 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। करेले 5 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए फी किलो में कर किए गए, लेकिन फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। जबकि शलजम 1 रुपए इजाफे के बाद 84 रुपए में कर किए गए, लेकिन मार्केट में शलजम की फरोख्त 130 रुपए फी किलो तक की जा रही है। मटर 5 रुपए महंगे करके 355 रुपए सरकारी रेल इसमें आज मुकर किए गए, लेकिन मार्केट में मटर जो है 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। अनार बेदाना 20 रुपए महंगा करके 500 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में अनार बेदाना 500 के बरस 850 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 5 रुपए इजाफे के बाद 145 रुपए मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में अमरूद 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 5 रुपए महंगा करके 225 रुपए मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं जिनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, वो भी मार्केट में सरकारी नकनामों के बरस महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया।
पंजाब हुकूमत रवां सीजन चीनी और आटे के नर्ख मुकर्रर करने में नाकाम रही। मार्केट की सूरत-ए-हाल की बुनियाद पर आटे और चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक आ गई है, जबकि आटे की कीमत में तेज़ी थम गई है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। चीनी और आटे के सरकारी निर्ख जारी न हो सके, मार्केट की सूरत हाल की बुनियाद पर ही कीमतें मुकर्रर हो रही हैं। मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। 2 माह कबल चीनी 190 रुपए फी किलो तक बेची गई। आटे की कीमत में भी तेजी रुक गई। मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स का 20 किलो आटे का थैला 2700 से 2800 रुपए तक दस्तयाब है। खुला सुर्ख आटा 140 और फाइन आटा 150 रुपए फी किलो मिल रहा है। चक्की आटा बदस्तूर 175 रुपए फी किलो में है। मार्केट जराये के मुताबिक आइंदा हफ्ते आटे के थैले के निर्ख में कमी का इम्कान है। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए तक सस्ता हो सकता है, जबकि नई क्रशिंग से चीनी की कीमत में भी इस्तेहकाम रहेगा। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। नवंबर में गंदम के अजरा पर कीमतें क्या हो सकती हैं? लाहौर न्यूज़ सिफारिशात सामने ले आया। कौन से सूबे में गंदम रिलीज की कीमत क्या होगी और 10 किलो आटे का थैला कितनी कीमत पर फरोख्त होगा? तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा खुराक ने नवंबर के आगाज पर गंदम इजरा शुरू करने की ऑप्शन रख दी। पंजाब में गंदम की फीमन इजराई कीमत 4300 रुपए से 4600 रुपए रखने की सिफारिश कर दी गई। सिंध हुकूमत की गंदम की फीमन रिलीज प्राइस 4400 रुपए से 4600 रुपए और केपी हुकूमत की फीमन इजराई कीमत 4650 रुपए से 4700 रुपए रखने की सिफारिश की गई है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की फीमन इजराई कीमत की समरी वज़ीर आला पंजाब को भेज दी। वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई गंदम की इजराई कीमत की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। समरी दस्तावेज के मुताबिक गंदम की फीमन इजराई कीमत फिक्स करने का फैसला कबीना कमेटी के इजलास में होगा। इजलास में सरकारी गंदम की वीट रिलीज पॉलिसी 2023-24 की समरी का फैसला होगा। 4300 रुपए फीमन की सूरत में 10 किलो आटे का थैला 1256 रुपए में मिलेगा। जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए में फरोख्त होगा। गंदम की कीमत 4350 रुपए मुकर्रर हुई तो 10 किलो का थैला 1274 रुपए में मिलेगा। पिछले साल सरकारी गंदम 2200 रुपए फीमन के हिसाब से खरीदी गई थी। नई गंदम की खरीदारी इस मर्तबा 3900 रुपए फीमन रखी गई है। नई गंदम की कीमत फरोख्त 4300 रुपए होने से 400 रुपए इजाफा होगा। सरकारी गंदम की फीमन कीमत में मजमूई तौर पर 2100 रुपए का इजाफा किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। डेंगू मच्छर के वार न थम सके। लाहौर में डेंगू के 77 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 151 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। डेंगू वायरस का फैलाव मजीद बढ़ने लगा। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 77 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 151 मरीज सामने आए। रवां साल लाहौर में डेंगू के 3806 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। सूबा भर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 9049 तक पहुँच चुकी है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 84 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 30 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अलीजान खान ने कहा है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें और डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों की बेहतरी के लिए मुतहरिक है। मोहसिन नकवी का जनरल और म्यू अस्पताल का 3 घंटे तवील दौरा। अस्पतालों में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया, ज़रूरी हदायत दी और वज़ीर आला का शहरी की शिकायत पर टेस्ट बाहर से कराने पर इजहार बरहमी। टेस्ट के पैसे शहरी को वापस कराने का हुक्म दिया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनरल और म्यू अस्पताल का 3 घंटे तवील दौरा। दोनों अस्पतालों की अपग्रेडेशन और तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने जनरल अस्पताल के ओल्ड ब्लॉक और न्यू ब्लॉक में ऑपरेशन थिएटर्स की तामीर और बहाली का भी मुआयना किया। शहरी की शिकायत पर टेस्ट बाहर से कराने पर इजहार बरहमी। टेस्ट के पैसे शहरी को वापस कराने का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम आलात और अशिया की इन्वेंट्री तैयार की जाए। तामीराती काम के दौरान बेड्स और दीगर अशिया को महफूज जगह पर स्टोर किया जाए। बाद अज़ां मोहसिन नकवी ने म्यू अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। ऑपरेशन थिएटर्स, कंसल्टेंट रूम और इस्तिकबालिया एरिया का मुआयना किया। वज़ीर आला चारों फ्लोर्स पर गए और जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से मुसाफहा भी किया। निगरान वज़ीर आला ने 3 शिफ्ट में काम करने की हिदायत की। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी इतलात, वाइस चांसलर्स, MS और मुतल्लिका हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे।
लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। आपको बताया कि तरक्की का सफ़र जहां रुका था, नवाज शरीफ ने वहीं से शुरू करने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के उन वादों ने अवाम के लिए नई उम्मीद के साथ कई सवाल भी पैदा कर दिए। क्या साबिक वज़ीर आज़म पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 2017 की सतह पर ला सकेंगे? रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करने का ऐलान। अवाम के लिए नई उम्मीद तो है, मगर मुस्लिम लीग नून के लिए कड़ा इम्तिहान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मुख्तलिफ अदवार में जायजा लें तो PTI के पौने 4 साला दौर में पेट्रोल 77 रुपए महंगा होकर 149 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक गया। अदादा शुमार के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने दौर में डीजल की कीमत 63 रुपए 10 पैसे फी लीटर बढ़ाई और अप्रैल 2022 में डीजल 144 रुपए 10 पैसे फी लीटर था। PDM की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने और महंगाई कम करने का दावा किया, मगर 16 माह के दौरान कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे किए। पेट्रोल 123 रुपए 45 पैसे महंगा करके फी लीटर 272 रुपए 95 पैसे कर डाला। डीजल की कीमत में 129 रुपए 30 पैसे इजाफा करके 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दिया। निगरान हुकूमत भी किसी से पीछे न रही। पेट्रोल 10 रुपए 43 पैसे महंगा करके 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर किया गया। निगरानों की निगरानी में ही डीजल 29 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ और 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया। नून लीग को हुकूमत मिली तो इसे तरक्की का सफर 2017 से शुरू करने में बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। 2017 में पेट्रोल 72 रुपए 80 पैसे, डीजल 81 रुपए 40 पैसे फी लीटर था। अवाम कहते हैं ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जो शय महंगी हो गई सो हो गई। पेट्रोल तो उसकी कीमत पे कभी भी नहीं आएगा। आप ये सोच ही नहीं सकते कि पेट्रोल वापस आए, या वो चीज़ें जो गुजर गई हैं वो पाकिस्तान में अभी तक वापस उस मुकाम पे नहीं आई। सर ये हो नहीं सकता, पेट्रोल सोचने से आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक बार ऊपर चला गया। माहिर मुआशियात व सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर का कहना है कि नवाज शरीफ का ऐलान खुशाइंद है, ताहम जब तक रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं होगी मामलात बेहतर नहीं होंगे। इंडस्ट्रीज अपने सेटअप्स को यहाँ पर करें ताकि हमारे मुल्क के अंदर पैसा आए। जब आपके मुल्क के अंदर डॉलर्स आएंगे तो आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, और जब आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो अल्टीमेटली बिजली, पेट्रोल, गैस, हर ज़रूरत ज़िंदगी, फल, सब्जियां, सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अगर नून लीग फिर बरसरे इक़्तिदार आई तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को 2017 की सतह पर लाने के लिए इसे पेट्रोल 210 रुपए 58 पैसे और डीजल 222 रुपए 40 पैसे फी लीटर कम करना होगा। नवाज शरीफ ने जब हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त पेट्रोल 72 रुपए 80 पैसे और डीजल 81 रुपए 40 पैसे फी लीटर था। आज पेट्रोल की कीमत 283 रुपए 38 पैसे और डीजल 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर है। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून को जब हुकूमत मिलेगी तो अपने वादे की पासदारी करती है या उसमें नाकाम रहती है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी मोहम्मद सरवर और जनरल सेक्रेटरी पंजाब शाफे हुसैन ने कहा है कि अक़वाम आलम को गज़वा पर हमलों का नोटिस लेना चाहिए, फ़लस्तीनियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्लिम उम्मा सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल के गज़ा पर हमलों को रोकने के लिए इक़दाम करे, और इसराइल अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं करता तो इस पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुजाहरे में लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड्स और फ़लस्तीन के झंडे उठाए इसराइली जहारियत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि कश्मीर में भारत और फ़लस्तीन में इसराइल निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करें। कश्मीरियों को भी आज़ाद रहने का अभी तक हक नहीं मिला। वहाँ पर जो है वो भारत की जो जालिम पॉलिसी चल रही है, और यहाँ पर जो है ये इजराइल की फ़लस्तीन के ऊपर जालिम पॉलिसी चल रही है। इजराइल को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी दिन रात जो है वो मुबारी कर रहे हैं। मुसलमान ममालिक हैं, उनको चाहिए कि इजराइल से हर किस्म का जो है वो बायकॉट कर देना चाहिए। चौधरी सरवर का कहना था पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे होने के बावजूद वो खून की होली खेलना बंद नहीं कर रहा। अगर इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं मानता तो इस पर पाबंदियां लगाई जाएं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसराइल पैलेस्टाइन में जेनोसाइड कर रहा है, निहत्ते मुसलमानों का खून बहा रहा है,
क्या आपकी आंखें बंद हो गई हैं? हम अपने फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। चौधरी सरवर ने मुतालबा किया कि फलस्तीनियों को उनकी आज़ाद मुमलिकत मुहैया करने के लिए तमाम मुस्लिम उम्मा को यकजा होना होगा, सिर्फ जुबानी दावों से काम नहीं बनेगा। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर कहते हैं कॉटन इंडस्ट्री पर वज़ीर आला ने बहुत मेहनत की है, चीन के साथ मिलकर कॉटन इंडस्ट्री को बेहतर बनाएंगे। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। निजी इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉर्म के असरात पर निजी होटल में सेमिनार निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर और चीनी कौंसल जनरल की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। नज़ीर हुसैन, डॉक्टर शबीर, डॉक्टर अमजद मक्सी, डॉक्टर एहतशाम और दीगर सेमिनार में शरीक हुए। इस मौके पर निगरान सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 20 मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती कामों के हवाले से MOU पर दस्तखत किए गए हैं। चाइना के साथ मिलकर कॉटन की इंडस्ट्री को बेहतर बनाएंगे। Pakistan visited China and signed 20 MOUs and agreements in different sectors. This forum will provide better opportunities for Pakistan and other countries. It will not only enhance world connectivity but also make the governance system more transparent. चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान आला मयार के ताउन को एक नई तहरीक दे दी है। What kind of impact this BRF will have on Pakistan, and what we should anticipate the impact on China-Pakistan relations, on the future development of CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. I believe this might be more essentially relevant to today's seminar. I have personally very full confidence because the successful conclusion of this BRF will enable our bilateral relations further develop. I mean, a brighter future of our bilateral relations, our traditional friendship is awaiting us. चीन के साथ तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से मुनाकिदा सेमिनार को शुरका ने खूब सराहा। कैमरामैन फैसल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि सियासी जमातें मौरसियत और वसीयत पर चल रही हैं, कभी महबूब मयूब और मयूब महबूब बन जाता है। मलिक अहमद खान ने कहा है कि नैब को पार्टियां तोड़ते और हुकूमतें गिराते देखा है। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार और मुसन्निफ अली अहमद ढिल्लों की किताब उंगलियां कलम हुई की तकरीब रूनुमाई मुकामी होटल में मुनक्किद हुई। जमात इस्लामी के रहनुमा नईमुर रहमान खुलकर बोले, अगर मुल्क में इंसाफ का निज़ाम होता तो फिर बांग्लादेश ना बनता। जिस तरह कराची का बल्दियाती इलेक्शन हुआ, इसी तरह का पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है। फलस्तीन के लिए पाकिस्तान से कोई ताकतवर आवाज नहीं उठी। जिस मकसद के लिए मुल्क हमने बनाया था, तो फिर ये बांग्लादेश ना बनता। फिर बंगालियों को उनके हुकूक मिलते, फिर सिंधियों को उनके हुकूक मिलते, बलोचों को उनके हुकूक मिलते, पंजाबियों को और पख्तूनों को और महाजरों को उनके हुकूक मिलते। फिर लोग लिसानियत की बुनियाद पर नहीं उठते। इसलिए ये आदल अगर हम कायम करने में कामयाब हों, जो हमारे दीन की सबसे बड़ी पहचान और शिनाख्त है, तो फिर ये शिकवे दूर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि आज के दौर में किसी के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ नैब को हुकूमतें बनाते और गिराते देखा। मैंने नैब को पॉलिटिकल पार्टीज को सरकमवेंट करते देखा, उनको तोड़कर दूसरी जमात में ज्वाइन कराते देखा, हुकूमतें बनाते देखा, लोगों के घरों के रास्ते बंद करते देखा। इसी नैब को मैंने देखा किस तरह उन अफसरान की बहुओं को, बेटियों को, बहनों को हब्से बेजा में रखा। मैंने देखा, ये सब मैंने देखा। किताब के मुसन्निफ अली अहमद ढिल्लों का कहना था कि हमारे लिए सहाफत करना मुश्किल हो गई है। हम सब को मिलकर सिर्फ पाकिस्तान की बात करना होगी। कैमरामैन फैसल के हमरा राहील अली, लाहौर न्यूज़।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ है। तरक्याती मंसूबों को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। कहते हैं कि पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए तेज़ तरीन रिस्पॉन्स नागुज़ीर है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास में सूबे भर में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने 43 मंसूबों पर डेवलपमेंट प्रोग्रेस का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला की जारी तरक्याती मंसूबों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास के शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा मल्टी ग्रिड फ्लाईओवर मंसूबे पर काम 92%, इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज पर 65% मुकम्मल हो चुका है। अकबर चौक फ्लाईओवर और बेदिया अंडरपास की तामीर 80% मुकम्मल हो चुकी। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग का वाल्टन रोड 80%, घोड़ा चौक फ्लाईओवर 34% मुकम्मल हुआ। इजलास में सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम मेयो अस्पताल, जनरल अस्पताल, लेडी वेलिंगटन और दीगर अस्पतालों की अपग्रेडेशन का जायजा लिया गया। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन पर रिपोर्ट पेश की गई। दरबार बाबा बुल्ले शाह, शाह शम्स तबरेज, बाबा फरीद और बीबी पाकदामन की अपग्रेडेशन को तेज करने का हुक्म। इजलास में सूबाई वज़रा बिलाल अफजल, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, आमिर मीर, अजफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी और महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। वासा का शहर में 7 लाख वाटर मीटर्स की तनसीब का मंसूबा खटाई में निजी कंपनी ने डॉलर महंगा होने पर वाटर मीटर्स के लिए पुर्जे खरीदने से इनकार कर दिया। स्टेट बैंक ने भी निजी कंपनी को एलसी खोलने की इजाज़त न दी। आपको बताएं कि लाहौर में 7 लाख से ज़ायद कनेक्शंस पर वाटर मीटर्स तनसीब किए जाने थे। वासा और निजी कंपनी के दरमियान मुआहिदा के वक्त डॉलर 160 रुपये था, जबकि कंपनी को मीटर्स के पुर्जे मंगवाने के लिए अब 280 रुपये फ़ी डॉलर अदा करने होंगे। डॉलर की महंगाई पर निजी कॉन्ट्रैक्टर काम करने से कतराने लगा। स्टेट बैंक ने भी ताहाल निजी कंपनी को एलसी खोलने की इजाज़त ना दी। एमडी वासा ने एलसी खुलवाने के लिए पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली। गुफरान अहमद का कहना है कि निजी कंपनी के साथ मामूलात तय कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेहत के शोबा के लिए मज़ीद फंड्स देने का ऐलान किया है। मोहसिन नकवी कहते हैं अब तक हस्पतालों की रीवैम्पिंग पर 26 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सुजाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के ज़रिए तमाम तीसरी वाइस चांसलर प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस लाहौर के मुकामी होटल में हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की निस्बत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के तदरीसी अस्पतालों की हालत ज्यादा अबतर थी, जिसमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि अब तक अस्पतालों की रीवैम्पिंग पर 26 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। मोहसिन नकवी ने सेहत के शोबे के लिए मजीद फंड्स देने का भी ऐलान किया। डेडलाइन हमारी 31 जनवरी है कि 31 जनवरी तक हमने ये सारे हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग कंप्लीट करनी है। इन्होंने बोला 26 बिलियन। मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, हम जहां मर्जी से पैसे काटें, ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपको 50 बिलियन भी और चाहिए होंगे मैं वो भी अरेंज करके दूंगा। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि नहीं चाहते कि अस्पतालों में एक बेड पर 5-5 मरीज हों। सूबे भर के अस्पतालों के लिए 10,000 नर्सें भर्ती की जा रही हैं। कुछ हॉस्पिटल में ज़रूर बेड खाली होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंचा हूं कि अगर मीडिया का परसेप्शन एक और है कि जी एक बेड पे 5 पेशेंट हैं, बिल्कुल गलत है, नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या हम उस पेशेंट को वापस भेज दें और वो फिर अल्लाह ताला के सुपुर्द हो जाए, या उसका जिस तरह मर्ज़ी हो इलाज हो जाए, ये हमें भी देखना है। मेरा ख्याल है कि मीडिया को ये ज़रूर देखना है कि कम से कम लोग इलाज हो, फ्री और बेहतर हो। इससे पहले कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने प्रिंसिपल और MS साहिबान को अस्पतालों की इस्लाहात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। लाहौर हाईकोर्ट में आज से 23 दिसंबर तक जजेस का रोस्टर जारी कर दिया गया। 12 डिवीजनल बेंच और 25 सिंगल बेंच केसेस की समाअत करेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तमाम नौइयत के केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नैब की अपीलों पर समाअत करेगा। आपको बताएं कि जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दहशतगर्दी के केस सुनेगा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच सज़ाए मौत के खिलाफ अपीलों समेत दीगर केसेस की समाअत करेगा। आपको बताएं कि शहरियों को बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल भेजने का सिलसिला जारी है। बिल बर वक्त मिल रहे ना ही घरों में पहुंचाए जा रहे हैं। लेस्को ने ऑनलाइन बिल डालकर अपनी जिम्मेदारी
से हाथ खींच लिया है। सार्फिन की अक्सरियत जुर्मानों के साथ बिल देने पर मजबूर है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लेस्को की जानिब से शहरियों को होश उड़ा देने वाले बिल बेचे जाने लगे। लोगों की कसीर तादाद लेस्को के बिल्स की हार्ड कॉपी न मिलने पर दर बदर होने लगी। लेस्को ने ऑनलाइन बिल डालकर अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया। रिकवरी मुहिम और बिजली चोरी की मुहिमात ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। सार्फिन को बिल बर वक्त मिल रहे, न ही घरों को पहुँचाए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक सार्फिन की अक्सरियत जुर्मानों के साथ बिल देने पर मजबूर है। कई सार्फिन को इस माह के बिल मौसूल ही नहीं हुए। शहर में सबसे खराब सूरत हाल रायवन रोड और अड्डा प्लाट के नवा की है। रायवन रोड के मुख्तलिफ इलाकों हाउसिंग सोसाइटीज के मकीन लेस्को बिल्स को तरस गए। फजाइया हाउसिंग सोसाइटी फेज 1 में कई माह से बिल्स की हार्ड कॉपी नहीं मिल रही। अक्सर सब डिवीजन्स में बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद ही नहीं या बहुत कम है। जिन सब डिवीजन्स में 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सार्फिन तक बिल नहीं पहुँचा रहे। LDA में पुरानी और फरसूदा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भांडा फूट गया। पंजाब हुकूमत और LDA इंतजामिया ने रिकॉर्ड शिफ्टिंग की डेडलाइन दे दी है और अफसरान की जानिब से नए कंप्यूटर के तकाजे ने LDA के फरसूदा निज़ाम को आया कर दिया है। LDA को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का मंसूबा फ्लॉप हो गया। LDA का शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइलों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने से कासिर। गुज़श्ता 12 साल से फाइलों की जांच पड़ताल और अलग अलग करने का अमल ही मुकम्मल न किया जा सका। LDA के प्लॉटों की मलकियत नक्शों का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज न हो सका। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज न होने की वजह से मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आने के वाकयात रोनमा हुए। रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करवाने के लिए शोबा IT ने नए कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स का तकाजा कर दिया। LDA के शोबा हाउसिंग 11 को 18,30,000 रुपए से नए कंप्यूटर खरीद कर दिए जाएंगे। लैपटॉप्स की खरीदारी पर 19,97,000 रुपए खर्च होंगे। दीगर डिवाइसेस 38,49,000 रुपए से खरीदी जाएंगी। LDA के मुख्तलिफ शोबाजात ने रवा माह में IT से मुतल्लिका मशीनों की खरीदारी की इस्तदा कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अदालतों से मुकदमात का बोझ कम करने का इकदाम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने साइलिन के तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाला के लिए कमीशन की मंजूरी दे दी है। महकमों के खिलाफ शिकायत करने वाले शहरी को अदालतों से पहले कमीशन से रुजू करना होगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। निगरान पंजाब हुकूमत ने महकमों के हवाले से केसेस निपटाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के कमीशन की मंजूरी दे दी। कमीशन का नाम ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए कमीशन की मंजूरी दी। किसी भी महकमे या अफसर के खिलाफ अगर कोई शिकायत होगी तो अदालत से रुजू करने से कबल कमीशन से रुजू करना लाजमी करार दे दिया गया। काबीना की 17 अक्टूबर की मीटिंग की रोशनी में महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कमीशन के क़याम से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम इंतजामी महकमों में तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले का कमीशन बनाया जाएगा जो 15 रोज में दरख्वास्त पर फैसला करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पाक तुर्किया दोस्ती मोहब्बतों की बेमिसाल दास्तान है। तुर्किया और पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में शाना बिशाना खड़े रहते हैं और खड़े रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 100वीं यौम जमहूरिया पर तुर्किया के अवाम और क़यादत को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि तुर्किया में जमहूरियत की 100वीं सालगिरह पाकिस्तानियों के लिए बेहद खुशी का बायस है। पाक तुर्किया दोस्ती मोहब्बतों की बेमिसाल दास्तान है। पाकिस्तान और तुर्किया इस्लामी ब्रादर है। हमारी सकाफ़त, तारीख़ और तहज़ीब एक जैसी है, इसलिए हमारी दोस्ती मिसाली है।